حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی یہ بطور عاجزی فرماتے ہیں کہ میں دل کی سختی کے مرض میں مبتلا تھا. بہت سارے ناظرین ہو سکتے ہیں یہاں پر ایسے ہوں جو یہ کہتے ہوں یا سوچتے ہوں کہ دل سخت ہے, وہ نرمی نہیں ہے, خاص طور پہ عبادتوں میں دل نہیں لگتا, دعاؤں میں آنسو نہیں بہتے. تو اگر دل کی نرمی چاہتے ہیں نا تو آج اس ذرا واقعے کو غور سے سنیے گا. کہتے ہیں میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی دعا سے مجھے اس مرض سے چھٹکارا ملا. ماجرا یہ ہوا کہ ایک بار میں جا رہا تھا تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ایک بچہ کھڑا تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑے پرانے تھے, اور وہ بچہ رو رہا تھا. تو میں نے کہا حضرت کیوں رو رہا ہے بچہ؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ میں اس بچے کو دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ساتھ یہ بچہ الگ سے کھڑا رو رہا ہے. تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, میں غریب ہوں, یہ بچوں کے پاس اخروٹ ہیں, یہ اس سے کھیل رہے ہیں, نہ میرے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہ میرے پاس اخروٹ ہیں کہ میں ان بچوں کے ساتھ کھیل سکوں. تو میں نے اس بچے کو اس لیے ساتھ لے لیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی دل جوئی کا سامان کروں اور اس کو کوئی سامان دلا دوں جس سے اس کے دل پہ خوشی داخل ہو. عید کا دن تھا اور وہ بچہ رو رہا تھا. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں حضور یہ بچہ مجھے دے دیں, میں اس یتیم بچے کی خدمت کروں. آپ نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کریم تمہیں اپنی معرفت کے راستے دکھا دے گا اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا. اور اس طرح کی دعاؤں سے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے انہیں نوازا. آپ کہتے ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر گیا, میں نے اسے نئے کپڑے دلائے, نئے کپڑے پہنائے, پھر اسے اخروٹ بھی دلائے. وہ سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا. شام وہ بچہ جب کھیل کر واپس آیا تو میں نے پوچھا ہاں سناؤ بیٹا اب تمہاری عید کیسی گزری؟ کہتا چچا جان اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے مجھے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنائے, آپ نے مجھے اخروٹ بھی دلا دیے, میں سارا دن بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا, اللہ آپ کی خیر فرمائے. اور اس بچے نے بھی آپ کو خوب دعائیں دی. اور آپ رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس دن مجھے عید کا حقیقی لطف آیا. حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے مقام کو کون نہیں جانتا, آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, مگر اللہ کے ایک اور ولی کی دعائیں لی اور یتیم بچے کی دعاؤں میں بھی آپ کو حصہ ملا. بعض اوقات ناظرین ہم کسی کے دلوں میں خوشی داخل کر کے اپنی خوشیوں کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں. کیا ہم اس بار ایسا نہیں کر سکتے کہ خوشبو عید کو پھیلانے کے لیے ہم بھی اپنے آس پاس رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں, اپنے ملازمین میں, جاننے والوں میں کچھ ایسے لوگ تلاش کر لیں کہ ہم کم از کم ایک فیملی کے گھر میں خوشی داخل سامان کچھ پہنچا دیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ گھروں میں بچے غمگین بیٹھے ہوں کہ آج وہ اچھے کپڑے نہ سلوا سکے ہوں یا اچھا کھانا نہ کھا سکے ہوں. یا ایک اور بات میں عرض کروں گا, پھر میں انشاءاللہ اپنے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں, مبلغین, ان کی طرف چلوں گا کہ بعض اوقات ہم پتہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھ سے مانگنے تو کوئی نہیں آیا, نہ میرا رشتہ دار آیا, نہ میرا ملازم آیا, نہ میرا پڑوسی آیا, تو اس کا مطلب انہیں ضرورت نہیں ہے. شاید یہاں ہم ایک چھوٹی سی غلطی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جو پریشان ہیں مگر وہ مانگ نہیں سکتے. ہاں وہ قرضے میں چلے جائیں گے لیکن وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, اور اکثریت ان کی ہے. دیکھیں نا, جن کو اللہ نے بہت دیا وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک 15, 20, 25 ہزار روپے والی تنخواہ والا شخص کیا عید بنائے گا. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں مانگیں گے. ہم اگر یہ معیار بنا لیں گے کہ جب تک میرے دروازے پر کوئی آ کر مجھ سے سوال نہیں کرے گا جب تک میں مدد نہیں کروں گا, شاید ہم بہت سارے ضرورت مند لوگوں کی ہیلپ کرنے سے رہ جائیں گے. ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ یار اس کی سیلری 15, 20, 25 ہزار روپے, اس کو کیا بچتا. اچھا آپ نے اگر اس کو سامان پہنچا دیا تو خوشی تو ہوگی نا. تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں, بن مانگے سلیکٹ کرنے کی اور سرچ کرنے کی, تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ نے دیا ہے تو بانٹیں. یہ دن ہے خوشیاں بانٹنے کے. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے ایک یتیم بچے کی مدد کی, اس کی دعائیں لی آپ نے, اس کے دل میں خوشی داخل کی. کہتے ہیں مجھے حقیقی خوشی مل گئی. اور بلیو کریں جس دن آپ نے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دی نا, اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر جو دل میں خوشی محسوس ہوگی, ایکچولی وہی خوشبو عید ہے, وہی خوشی ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس رینک تک پہنچ جائے. اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ میرا بندہ صبر کر لے تو اس کو وہ مرتبہ عطا ہو جائے. ہائے ہائے, یعنی آزمائش مجھ پر میرے رینک بلند کرنے, میرے درجے بلند کرنے آئی, اور ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ سب ثواب ضائع کر دی. نہ کریں میرے پیارے اسلامی. مشکلیں آتی ہیں. اچھا پھر پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ایک اور بڑا ایشو ہے, ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں, کسی کو اچھے کپڑے دیکھ لیتے ہیں, کسی کی بڑی گاڑیاں دیکھ لیتے ہیں, کسی کا بڑا گھر دیکھ لیتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یار یہ کتنا مزے میں ہے یار, میں ہی اکیلا پریشان ہوں. یہ آپ کی بھول ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے مسئلے اور ہیں, غریب کے مسئلے اور ہیں. شہرت جس کو ملی ہے نا اس کے پرابلمز اور ہیں, جو غیر معروف ہے اس کی پرابلم اور ہے. زمانے میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ ایشو ضرور ہے. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ اتنا مسکرا رہا ہے, کیا پتہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنے دکھ چھپائے بیٹھا ہے. آپ یقین کریں, بلیو کریں, ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ 100% خوشحال ہیں. پرابلم سب کے ساتھ ہوتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو, ہمارے پاس تو لوگ دعائیں کروانے آتے ہیں نا,
ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे एक अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है यार हमारा तो हम ही कुछ नहीं है, कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा। मैं आज की आपको मिसाल देता हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया, उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगा ना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, ज़ाहिर है 16 दिन पहले इंतकाल हुई। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल रऊफ भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो, वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्ले तल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं, कितना तकलीफ पे हैं लोग। और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री, सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदाने नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है, काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अता करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं होता कुछ नहीं है, इससे मत बताया करो दुनिया वालों, सही बता दो, मत बताया करो, अपने गम मत बताया, सवाब भी चला जाता है। और बाज औकात की दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों। नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ, ना बताओ दुनिया वालों। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे साथी, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाया। तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लग गई है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा न हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहाँ ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च विद योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई है, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदुम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल होगी
10%, उशर क्या कहते हैं 10वें हिस्से को, वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है अगर हम ज़कात देते तो? कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात, अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए, ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है? शुक्र अदा करो, अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों दसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, अच्छा उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धसा दिया गया। प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं आज, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। ओह आमीन। या अल्लाह वो माल देना कि मैं खुश दिली से तेरी राह में ज़कात। अच्छा ये भी बड़ा इशू है, पैसे निकलते हैं तो भारी बड़े पड़ते हैं। अल्लाह फरमाता तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना। आप बेहतरीन खर्च करो ना, अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा जब भी कैलकुलेटर, देखिए कुछ चीजें कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती हैं, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला है ना, वो रहमत के कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। वो मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए, ये तो कम हो गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगले साल आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, आप उससे ज्यादा की ज़कात दे रहे होंगे। ये कैसे? जो भी ज़कात देता है आप उसको पूछ लीजिए, हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? ज़कात तो कम हो, पैसे कम होने चाहिए थे। नहीं जनाब, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वादा है। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। आप फरमाते मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। फिर तो लॉक कर दो ना, फिर तो समझ जाओ कि जब नबी पाक कसम उठाकर फरमा रहे हैं। अच्छा फिर आप सबको देख लें, जो बांट रहा है ना हम हर साल उसका बढ़ते हुए देख रहे हैं, कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं। अब फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और इंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं। दो और इंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लेरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं, उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 एग्स ओनली। कहा ये चारों ही दे दो, ईमान और अकीदा और बिलीफ देखें, चारों दे दो। चारों दे दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक बंदा टोकरी लेकर आया। कहा क्या आए? बेगम से पूछा, कहा आपके दोस्त ने अंडे भिजवाए हैं। कहा कितने आए हैं? कहा साहब जरा सुनिएगा, कितने आए? तो कहा कि 30 आए हैं। कहा 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे ना। अब ईमान, उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, क्या 4 दिए तो 40 आने चाहिए थे, एक का 10 अल्लाह का वादा है ना। तो कहा हुजूर आए तो 40 हैं मगर 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि सच बताओ जो तुमने 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर बात ये, जब मैंने 4 दिए थे ना उसमें भी 3 साबित थे, एक टूटा हुआ ही। ये फॉर्मूला आज याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, मैं अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, बेहतरीन दे रहा हूं या बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, वहां नीयत पहुंचती है।
अब मुझे बताओ ना यार, हम अपने लिए खर्च करते हैं बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, और गरीब को देना है तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर। अब अच्छा, अब मैं कहता हूँ 100 बंदों को नहीं खिला सकते, ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, अच्छा खिलाएं, कोई बात नहीं। आप किसी के दिल में खुशी तो दाखिल करें, अपने घर वालों के लिए लिबास खरीद लें, 2 गरीब बच्चों के लिए वैसा ही लिबास खरीद लें, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो हमें इस बार ये एक अंदाज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना। इसको हमें गलती क्या करते हैं, फितरे की, जो फितरे की जो बात है उसमें मैं आपको एक बात बता, फितरा हदीस पाक में 4 किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का, ठीक है। लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें ये पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदुम का फितरा देते कोई बात नहीं है, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए। मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदुम का फितरा दे आता हूँ। हमेशा याद रखे, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है। बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजे। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें। ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ही ये था कि सखावत इसको कहते हैं। ये है अल्लाह की राह में खर्च करना, जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। मगर आज हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है, मगर ज़कात पूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें। मैं नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें कि ज़कात तो पूरी दो यार, ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह, मैं 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात कही, वो कहता है अब्दुल हबीब भाई, मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते, उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मैं जब से मैंने बांटना शुरू किया है, मेरे माल में ऐसे बरकत आई है, मैं खुद हैरान हूँ। मेरे सामने डील होती थी, वो मुझे नजर नहीं आती थी, मैं इधर अल्लाह की राह में सदका करता हूँ, ऐसा लगता है आंखों से पर्दा उठता है, मेरा काम हो जाता है। तो उनको बताइए आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करके। तो ये ड्यूटी है। बचपन से सुना था इस्लाम के 5 पिलर हैं, तौहीद, रोजा, नमाज, हज और ज़कात। हम ज़कात को तो ऐसे इग्नोर कर बैठे हैं कि जनाब दे दी अपनी मर्जी से, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, ज़कात किसको जा रही है ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी ज़कात का ये मुस्तहिक है कि नहीं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूँ उसके पास कोई ज़कात अदा करने का सही फॉर्मूला है कि नहीं, या मैं जिस बंदे को दे रहा हूँ वो ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं। बस सर से एक बोझ उतारना है, लमसम अमाउंट दे देनी है, ये नहीं चलेगा। खुदारा याद रखिए, ज़कात पूरी कैलकुलेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है और सही मुस्तहिक तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आप बिलीव करें, जिस दिन आपने ये काम कर लिया, आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आप अपने गम और अपनी परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं, अल्लाह हमें दिल खोलकर अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर सबसे पहला हक आपकी ज़कात का वो हक है आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का। अपने गरीब रिश्तेदारों को आप दीजिए ज़कात, क्योंकि जो अपने रिश्तेदारों को ज़कात देता है, सदका करता है, उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदका देने का, एक सिला रहमी करने का। और फिर आपके गरीब रिश्तेदारों से बात ज़कात बच जाए तो फिर मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लाम कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में काम कर रही है, तो अपनी ज़कात का अपना हिस्सा जो है उसमें जरूर अता फरमाएं। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह कौसर। सूरह कौसर का तारुफ, मकाम नुज़ूल। अल्लामा अली बिन मोहम्मद खाजिन रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सूरह कौसर जमूर मुफस्सिरीन के नजदीक मक्किया है और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक मदनिया है। आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद, इस सूरत में 1 रुकू, 3 आयतें, 10 कलिमे और 42 हुरूफ हैं। कौसर नाम रखने की वजह, कौसर से दुनिया और आखिरत की बेशुमार खूबियां मुराद हैं और जन्नत की एक नहर का नाम भी कौसर है। इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इस मुनासिबत से इसे सूरह कौसर कहते हैं। सूरह कौसर के मज़ामीन,
اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئی ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ إنا أعطيناك الكوثر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت إنا أعطيناك الكوثر سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر۔ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے،
शान नुज़ूल। जब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत कासिम का विसाल हुआ तो कुफ्फार ने आपको अबतर यानी नस्ल खत्म हो जाने वाला कहा और ये कहा कि अब उनकी नस्ल नहीं रही, इनके बाद अब इनका जिक्र भी ना रहेगा और ये सब चर्चा खत्म हो जाएगा। इस पर ये सूरह करीमा नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उन कुफ्फार का बालिग रद्द फरमाया और इस आयत में इरशाद फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही हर भलाई से महरूम है, ना कि आप, क्योंकि आपका सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। आपकी औलाद में भी कसरत होगी और आपकी पैरवी करने वालों से दुनिया भर जाएगी। आपका जिक्र मिंबरों पर बुलंद होगा। कयामत तक पैदा होने वाले आलिम और वाइज अल्लाह ताला के जिक्र के साथ आपका जिक्र करते रहेंगे और आखिरत में आपके लिए वो कुछ है जिसका कोई वस्फ बयान ही नहीं कर सकता। तो जिसकी ये शान है वो अबतर कहाँ हुआ, बेनामो निशान और हर भलाई से महरूम तो आपके दुश्मन हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस सूरत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं, आस बिन वाइल शकी ने जो साहबजादा है सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल पुरमलाल पर हुजूर को अबतर यानी नस्ल बुरीदा कहा, हक ताला ने फरमाया, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने तुम्हें खैर कसीर अता फरमाई कि औलाद से नाम चलने को तुम्हारी रिफत जिक्र से क्या निस्बत। करोड़ों साहिब औलाद गुजरे जिनका नाम तक कोई नहीं जानता और तुम्हारी सना का डंका तो कयामत तक अकनाफे आलम और अतराफे जहां में बजेगा और तुम्हारे नामे नामी का खुतबा हमेशा हमेशा अतबा के फलक आफाके जमीन में पढ़ा जाएगा। फिर औलाद भी तुम्हें वो नफीस और तैयब अता होगी जिनकी बका से बकाए आलम मरबूत रहेगी। इसके सिवा तमाम मुसलमान तुम्हारे बाल बच्चे हैं और तुम सब मेहरबान उनके लिए कोई नहीं, बल्कि हकीकत कार को नजर कीजिए तो तमाम आलम तुम्हारी औलाद मानवी है कि तुम ना होते तो कुछ भी ना होता और तुम्हारे ही नूर से सबकी आफरीनिश हुई। इसीलिए जब अबुल बशर आदम तुम्हें याद करते तो यूं कहते, या इब्नी सूरतन व अबाया मानन, ए जाहिर में मेरे बेटे और हकीकत में मेरे बाप। फिर आखिरत में जो तुम्हें मिलना है उसका हाल तो खुदा ही जाने। जब उसकी ये इनायत बेगायत तुम पर मबजूल हो तो तुम इन अशकिया की जबान दराजी पर क्यों मलूल हो, बल्कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, रब के शुक्राने में इसके लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो तुम्हारा दुश्मन है वही नस्ल मुरीदा है कि जिन बेटों पर उसे नाज है यानी अम्र और हशाम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, वही उसके दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारे दीन हक में आकर बवजाए इख्तिलाफ दीन उसकी नस्ल से जुदा होकर तुम्हारे दीनी बेटों में शुमार किए जाएंगे। फिर आदमी बेनस्ल होता तो यही सही के नाम न चलता, इससे नाम बद का बाकी रहना 1000 दर्जे बदतर है। तुम्हारे दुश्मन का नापाक नाम हमेशा बदी व नफरीन के साथ लिया जाएगा और रोज़े क़यामत उन गुस्ताखियों की पूरी सजा पाएगा। वल इयाद बिल्लाहि ताला। इससे मालूम हुआ कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम इतना बुलंद है कि उनके गुस्ताख को उसकी गुस्ताखी का जवाब खुद रब ताला दे। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं और दुरूद पाक के फजाइल में वाक़यात भी बड़े कमाल के मिलते हैं। दुरूद पाक के ऊपर एक बड़ी मशहूर और मारूफ वर्ल्ड फेमस बुक है दलाइलुल खैरात शरीफ, और ये बड़ी मुबारक किताब है। जिन्होंने लिखी वो भी बड़ी मुबारक हस्ती हैं, हज़रत सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इस किताब के जो ब्लेसिंग्स हैं, इसकी जो बरकतें हैं, पढ़ने वालों को जो जो मिला और मिलता जा रहा है उसका कमाल ही और है। एक बड़ा ईमान अफरोज वाक़या है और ये अमीर अहले सुन्नत को जो दावत इस्लामी के फाउंडर हैं मौलाना इलियास कादरी साहब, उनको किसी ने सुनाया था। कुतियाना जूनागढ़ स्टेट, ये इंडिया के जिस वक्त पाक व हिंद साथ था उस जमाने का ये वाक़या है कि उसमें एक बड़ा जबरदस्त आशिक रसूल रहता था और वो दुरूद पाक बहुत पढ़ता था। उसको पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ ज़बानी याद थी और वो क्या करता था, वो संग तराशता, वो पत्थरों को तराशता था, स्टोन का काम था। वो एक पत्थर तराशता था तो दलाइलुल खैरात शरीफ का एक बाब पूरा पढ़ लिया करता था। इतना उसका दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द था। उस आशिक रसूल की किस्मत जाग उठी। एक बार वो रात को सोया तो ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने गुंबद खजरा के साथ जो मीनार था, उस मीनार का एक पत्थर जो था, एक कंगरा जो था वो शिकस्ता था, टूटा हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीवाने ये देखो
ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا۔ اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز، آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے۔ کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا۔ جیسے ہی اس کی قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز سٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتا یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے۔ آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا کیا ہے۔ یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے۔ اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل جائے۔ یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح نا، کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں۔ کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی۔ درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ ہوا۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل۔ یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث، ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں۔ گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرفی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے۔ ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہے، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی 1 گیٹ 1 فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک ویک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔
सर्दियों में गर्मियों की चीजें खरीद रहे होते हैं, क्यों? सस्ता। हम दुनिया के नफे के लिए, दुनिया के बेनिफिट के लिए ट्रेवल भी करते हैं, जाकर खर्च भी करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, अफ्रीका के गालिबन एक मुल्क में मैं था, तो बॉर्डर्स मिले हुए होते हैं। हम बॉर्डर हमने क्रॉस किया, एक मुल्क का जैसी बॉर्डर क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करते ही एक बहुत बड़ा, वीराना था लेकिन बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बना हुआ और गाड़ियों की कितारें। मैंने इस्लामी भाई से पूछा, इस वीराने में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल और इतनी गाड़ियां? तो उन्होंने वजह पता क्या बताई? कहते जिस मुल्क के बॉर्डर के साथ ये स्टोर है ना, इस मुल्क में टैक्स है, ये मुल्क टैक्स फ्री है। अच्छा, उस मुल्क ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए अपने मुल्क के अंदर मॉल बने होंगे, एक स्पेशल मॉल यहां बना दिया ताकि इस मुल्क वाले सफर करके आए और पूरे महीने का सामान इस स्टोर से लेके वापस चले जाए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। एक एक महीने का सामान, अच्छा गाड़ियों की लाइनें। अब बताओ यार, हम दुनिया कमाने के लिए, सफर करने के लिए तैयार हैं, नफा कमाने के लिए वक्त देने के लिए तैयार हैं। हर जुम्मे स्कीम अनाउंस है, एक नेकी करो 70 गुना सवाब कमाओगे। बताओ क्या जहन होना चाहिए कि यार बस जुमे का दिन तो कुरान पढ़ूंगा, दुरूद पढ़ूंगा, सदका करूंगा। सुभान अल्लाह, ढूंढ ढूंढ के हमारे सहाबा अलैहिम रिदवान ढूंढ ढूंढ के नेक अमाल करते थे कि ये भी अमल कर लूं, ये भी कर लूं, और जुमे के दिन स्पेशली। तो अल्लाह करे जहन में ये बात बैठ जाए कि मैंने जुमे को ज्यादा नेकियां करनी है। अच्छा, अब इस पे मैं एक और मशवरा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जहन बनाया हुआ है कि यार पीर वाले दिन जो है ना, मैंने किसी मरीज की आदत, रिश्तेदार है, वहां जाना है, या मैंने जनाब सैटरडे या संडे कोई सदका खैरात करना है, किसी की हेल्प करनी है। आपने कोई नेकी प्लान की हुई है हफ्ता इतवार पीर मंगल में, तो कोशिश करके उसको जल्दी करें और फ्राइडे में कर लें। एक पॉइंट आपने देखा, मैंने ये नहीं कहा कि इसको अगले जुम्मे करें, हाँ डिले ना करें, थोड़ा जल्दी करके इस जुम्मे को करें ताकि 70 गुना जो है वो उसमें मैं सवाब कमा लूं, बरकतें हासिल कर लूं। तो अल्लाह करे कि मैं और आप नेकियों के हरीस बन जाए। नेकियों की जो लालच है ना, लालच में ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं सजदा भी करूं, मैं तिलावत भी करूं, मैं सदका भी दूं, ये तो नसीब वालों को मिलता है। और सहाबा किराम में हमें नजर आता था, पीछे नहीं हटते थे सहाबा। हमें ऐलान किया जा रहा है कि ये मौका है, ये नेकी है, और फिर भी कोई नजर नहीं आता। अल्लाह करे कि ये जज्बा, क्योंकि याद रखो, जिस तरह कारोबारी लोग कहते हैं ना सीजन है नेकियां कर लो, बिल्कुल इसी तरह जब तक मेरी और आपकी सांसें बाकी है ना, नेकियों का सीजन जारी है। जितनी नेकियां कमानी है कमा लो। ये माइंड सेट बना लो कि यार पता नहीं कब मर जाऊं, और नेकी और नेकी। जिस तरह पैसे कमाने का जहन होता है ना, अल्लाह करे इससे ज्यादा मेरा और आपका नेकियां कमाने का जहन हो जाए। यार थोड़ी और नेकी कमा, थोड़ी और। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने कहा जरा बैठिए, 10 मिनट बाद वो भाई आएंगे। अब हम 10 मिनट किस तरह गुजारते हैं? मोबाइल निकाला और जनाब देखना शुरू। 10 मिनट क्या 15 मिनट भी गुजरते हैं पता नहीं चलेगा, लेकिन ये 15 मिनट में क्या मिला? शायद गुना ही मिले होंगे, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, या तो हराम दिखा देती हैं या हराम सुना देती हैं। लेकिन अगर नेकियों का जहन हो तो बंदा सोचे यार 10 मिनट में तो मैं सूरह यासीन पढ़ सकता हूँ, 10 कुरान का सवाब है। मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड हो, कुरान शरीफ निकाला और यासीन शरीफ पढ़ ली, वेटिंग एरिया के अंदर 10 कुरान का सवाब कमा लिया। अगर ये माइंड सेट हो, बंदा कहे यार इतनी देर में तो 100 बार दुरूद पाक पढ़ लूंगा। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो 100 बार दुरूद पाक पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोज़ख की आग और निफाक से बरी है। 5-5 मिनट, 10-10 मिनट में मैं इतनी नेकियां कमा सकता, लेकिन माइंड सेट ही नहीं है, घंटों जाया कर देंगे, नेकी कमाने का जहन नहीं बनता। अगर यही 10-15 मिनट में मुझे पैसे मिलने होते तो बताओ हम क्या क्या करें। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो बहरहाल जुमा का दिन ये बहुत कमाल का दिन है। हर जुमे के दिन आपको ऊंट सदका करने का सवाब मिल सकता है। एक ऊंट कितने का आता है? 1.5-2 लाख रुपए का तो होता है। 2 लाख रुपए हर जुम्मे को सदका करो। महीने के हो गए 8 लाख रुपए। बंदा बोले गरीब आदमी 8 लाख हर महीने? जी जनाब, हर महीने 8 लाख कमोबेश आप सदका करने का सवाब कमा सकते हैं। कैसे? कितना आसान। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है जो जुमे के दिन सबसे पहले आता है उसे ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसे गाय सदका करने का सवाब मिलता है। मौला की रहमत से हर जुमे फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तेरी नूरी मखलूक के सदके हम पर रहम फरमा, हमारी मगफिरत फरमा। मगर तब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो रजिस्टर बंद करते हैं और वो भी आकर इमाम का खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते। जल्दी आकर, कुछ मिनट पहले आकर। अच्छा, इल्मे दीन अलग मिलता है, ज़ाहिर है यहाँ जुमे बयान होता है, वो बयान सुनने को आपको अलग मिलेगा, नेकी की दावत अलग मिलेगी, और सुभान अल्लाह ऊंट सदका करने का सवाब। मुबारक हो उन्हें जो जल्दी आते हैं। तो बहरहाल अब मैं चाहता हूं कि जब बात जुमे पर ही हो रही है तो एक मैंने और आपको पैगाम देना था। जुमे को खुतबा दिया जाता है, सालों से खुतबा सुन रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी उम्र शायद 17-18 साल थी तो सुनकर आधा खुतबा तो मुझे उसी वक्त याद हो गया। आप शायद पौना याद हो गया होगा। आप में से भी कईयों को 60, 70, 80% खुतबा याद होगा क्योंकि हर जुमे सुनते हैं। मगर किसी को ये तजस्सुस हुआ कि ये हर जुमे इमाम साहब पढ़ते हैं, इसमें पैगाम क्या है?
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں ہمیں کہا کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں، ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں، کچھ سو بھی جاتے ہوں گے۔ ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں، آدھا پونا یاد بھی ہو گیا، پیغام کیا ہے؟ دو باتیں، ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ذرا سنیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں۔ آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، یہ ایک حدیث ہی۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ کانوں نے کئی بار، کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں، دل ہلا دینے والا پیغام، بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں۔ البر لا یبلا، میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی، کرتے جایا کرو، یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ میں اور آپ بھول جائیں گے، میرا رب نہیں بھولتا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا، اگلا جملہ سنو، وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ بھول گئے، افسوس کے عجیب کہانی ہے یہ، تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں۔ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا، 95 میں عمرہ کیا، 2002 میں فلاں مسجد بنائی، آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا۔ ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہے۔ گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے، پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے۔ سالوں تو چھوڑو، ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں۔ مگر حدیث ڈرا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ تم بھول گئے ہو، کہیں لکھا ہوا ہے، جواب دینا۔ اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اس سے موت نہیں آتی۔ اللہ کو موت نہیں آنی، میں اور آپ مر جائیں گے۔ جس نے ڈیسیشن لینا ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اس سے موت نہیں آئی۔ پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، جیسی کرے گا۔ پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ بھر نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، وہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا۔ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، دروازہ بند کر کے، اندھیرا کر کے، اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں۔ نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ۔ ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، تو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار پیغام، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا، یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتایا تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا، بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی۔
मस्जिदों की तामीर हो रही होती है, तिलावत कुरान हो रही होती है, कोई नहीं रोकता, कुरान छप रहे हैं, लेकिन बार बार अगर हमला होता है, बार बार अगर अटैक होता है, तो इसलिए होता है कि इन मुसलमानों के दिलों से इनके नबी की मोहब्बत को निकली। इन मुसलमानों के दिलों में अगर ये मोहब्बत रसूल रह गई तो ये फिर भी दोबारा आकर यकजा हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। किसी तरह दिल से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाली जाए, और इसी वजह से ये सारी साजिशें की जाती हैं। माअल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां की जाती हैं, ताकि चेक किया जाए इन पर असर भी पड़ता है कि नहीं, कोई ऊपर नीचे होता भी है कि नहीं, कि अपनी दुनिया में मगन है, इसको एहसास ही नहीं है। नीचे इस्लामी भाइयों, दुनिया का दस्तूर है, जब किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी की जनाब जिस्म में विटामिन डी कम हो, हम क्या करते हैं, विटामिन डी की टेबलेट्स लेकर उसको फिर बढ़ाते हैं। कैल्शियम की कमी हो, डॉक्टर कहता है भाई थोड़ी कैल्शियम की दवाई पियो, तुम्हारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। जब किसी चीज की कमी की जाए, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अगर ये दुनिया के चंद लोगों का ये प्लान है कि मुसलमानों के दिलों से इश्क रसूल निकालो, तो अब मेरा और आपका काम यह है कि इंशाअल्लाह इश्क रसूल को अब इजाफा करेंगे, अब नबी पाक की मोहब्बत में और इजाफा करेंगे, सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारेंगे, खुद भी सच्चे आशिक रसूल बने, अपनी नस्लों को आशिक रसूल बनाएं। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को। 30 साल पहले, ये आजकल का शेर नहीं है, अब बचपन से ये नाच सुन रहे हैं, कमोबेश 25-30 साल पहले मेरे मुर्शिद ने क्या प्यारी इल्तिजा पेश की, अपनी नस्लों के लिए क्या हमें पैगाम दिया। कहते मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। ये है पैगाम दावत इस्लामी का, कि हम भी आशिक रसूल बने, किसी सूरत हमारे दिल से इश्क रसूल कम ना हो, और जनाब हमारी नस्लों में हम इश्क रसूल उतारें। तो मुझे और आपको इस डेफिशिएंसी को एफिशिएंसी में, इस पे इजाफे का एहतमाम करना होगा। अब आइए देखते तरीके क्या हैं, कैसे इश्क रसूल बढ़ेगा, कैसे दिलों में मोहब्बत रसूल बढ़ेगी। क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने, कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूँ, मानूंगा एक भी नहीं आपकी। नहीं जनाब, जिससे मोहब्बत होती है बंदा कहता है आपके लिए जान हाजिर, आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर, ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर फरमाने रसूल पर अमल करना हो, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दूसरी तरफ नबी पाक का तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? असर फर्ज नहीं, क्या मगरिब फर्ज नहीं है, क्या इशा फर्ज नहीं? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक। मैं जितने जुमले कहूंगा तकरीबन तमाम ही के मौजू पर नबी पाक की हदीस मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिसाल के तौर आप बीमार हैं, शिफा चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप कर्जे में हैं और कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचकर इज्जत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, कोई मुसीबत परेशानी में फंसू ना, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हो, और ऐसा दीदार नसीब हो कि कौनैन के वाली अपने हाथों से कब्र में उतारे, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप मुनकर नकीर के सवालात में साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। सुनो, कब्र में नबी पाक नजर आए और उनकी पहचान चाहते हैं, तो दुरूद पाक पढ़िए। बरोज़े महशर जब सारी दुनिया उठेगी, आप नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं, लिवाउल हम्द के साथ उठना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर बड़ा रश होगा, मगर नबी पाक के हाथों जामे कौसर चाहते हैं, तो दुरूद पाक पढ़िए। आप पुल सिरात पर घबराते हुए नहीं, साबित कदमी से गुजरना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, नबी पाक के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, सरकार के रोजे पे जाना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो,
मेरे आका का दीदार करना चाहते हैं फिर भी दुरूद पाक वही है। अब मैंने जितनी बातें बयान की हैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन तमाम बातों के पीछे हदीस पाक मौजूद है। जिनका मुताला है वो समझ रहे होंगे कि तमाम बिशारतें, ये तमाम रिवॉर्ड्स, ये तमाम इनायतें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में बयान फरमा दी हैं। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए। एक मुसलमान को अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपनी कब्र और अपने हशर के बारे में जो कुछ चाहिए मैंने सभी तो बयान कर दिया। आप इज्जत वाली जिंदगी चाहते हैं, आप रोजी रोजगार में बरकत चाहते हैं, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, जलील और रुसवा ना हो ये चाहते हैं, प्रेशर में ना रहें ये चाहते हैं, कलमे वाली मौत मिले, नबी ये पाक के दीदार वाली मौत मिले, कब्र में आका के जलवे हो, महशर मेरे आका के साथ हो, और चाहिए क्या? अल्लाह अकबर, ये है वजीफा दुरूद पाक। हम इसको पहचान ही नहीं सके, ये इस दुरूद पाक की बरकतों को जान ही नहीं सके। ये चाबी है सक्सेस की। इट इज द की ऑफ सक्सेस। एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक में है। ऐसे नहीं लिखा शायर ने कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अल्लाह करे कि बस इसको रियलाइज कर जाएं और अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल शामिल, ऐसा शामिल करने। अच्छा, मैंने जितनी सारी बातें बताई ना, इन सारी बातों के लिए अलग अलग हदीस तो मौजूद है। मैं आपको अलग एक और खूबसूरत हदीस सुनाता हूँ जो इस बात को मजीद एलोबोरेट कर देगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जरूरियात जिंदगी, खाना पीना सोना, अपने मामूलात के बाद अपनी लाइफ का 25%, 1/4 वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में सर्फ करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहुत अच्छी बात, हदीस का खुलासा है, थोड़ा बढ़ा लो तो और अच्छा है। कहता हुजूर 50% अपने वक्त को दुरूद पाक में सर्फ करूंगा। मैं बहुत अच्छी बात, लेकिन और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते हुजूर अब 75% दुरूद पाक में टाइम गुजारूंगा। फरमाया और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते बस अब अपने जरूरियात के बाद हुजूर सारा दिन आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। फरमाया अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलों के लिए काफी होगा, तुम्हारी तमाम जरूरियात के लिए काफी होगा। इट मीन्स ये सॉल्यूशन है। हम परेशान भी होते हैं फिर भी दुरूद नहीं पढ़ते, हम कर्जे में होते हैं दुरूद नहीं पढ़ते, हमारे कारोबार की प्रॉब्लम आ जाती है हम दुरूद नहीं पढ़ते, हम बीमार हो जाते हैं हम दुरूद नहीं पढ़ते, हालांकि सबका इलाज है। सुभान अल्लाह। तो अब आज इस खूबसूरत इज्तिमा में आए हैं, ये पहले रियलाइजेशन लेकर जाएं कि मैंने अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल ऐसा शामिल कर लेना है जैसे जिंदगी में बहुत सारी जरूरी जिंदगी की चीजें शामिल की है। पहले तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक और जिहद की तरफ बात करना चाहता हूँ। फजीलत तो सुन ली, मजा भी बहुत आया, सुभान अल्लाह भी बड़ी जोर से निकला। दुरूद पाक कल से शामिल होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी कई बार फजीलतें सुनी है। दावत इस्लामी वाले तो जब बयान करते हैं पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं, और जब सुनते हैं माशाल्लाह मजा भी बहुत आता है, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वही पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद पाक शामिल नहीं होता। मैंने बहुत गौर किया, सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने लिए गौर किया कि यार बयान तो बड़े करता है, तेरी जिंदगी में कितने दुरूद है, कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक। दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो।